हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी चल रहे सेल का फायदा उठाकर कपड़े, जूते, मोबाइल आदि खरीदे होंगे? जी हाँ, अभी सेल चल रही है, इसलिए लोग अभी ये चीजें खरीद रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आगे जाके यही चीजें इन्हें महंगे में खरीदनी पड़ेगी। इसी तरह से हमारे शेयर मार्केट में भी अभी सेल चल रहा है। हमारा शेयर मार्केट ऊपर के लेवल से करीबन 15 से 20% टूट गया है और कुछ शेयर्स तो 50-50% करेक्ट होकर बैठे हैं। आज हम इस वीडियो के मार्फत कुछ इन्वेस्टमेंट गुरुज की जुबानी आप सबको सुनाना चाहते हैं कि किस तरह से इस सेल का फायदा उठा के हम मार्केट में पैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉरेन बफेट जी की और उनके एक छोटे से वीडियो क्लिपिंग से बताना चाहेंगे कि किस तरह से जब मार्केट गिरता है तो हमें म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में और यूनिट्स खरीदने चाहिए। I never know what markets are going to do. There's never been a time in my life when I know what markets are going to do over a long period of time. They're going to go up. But in terms of what's going to happen in a day or a week or a month or a year even, I've never felt that I knew it, and I've never felt that was important. I will say that in 10 or 20 or 30 years, I think stocks will be a lot higher than they are now. You know, I know you look at things like that, but I also know that you look at stocks and try to decide if they're fairly valued, if they're overvalued, if they're looking cheap at this point. And we have been waiting for a correction for an awfully long time. That's finally come. Do stocks look cheaper to you, just based on where we've come? Well, anytime stocks go down, as far as I'm concerned, I like it because I'm a net buyer of stocks. I've been buying stocks ever since I was 11 years old. So when stocks go down, it's good news. Just like when hamburgers go down, it's good news, or Coca-Cola goes down, it's good news in terms of anything I buy. But you know, stocks are going to go down. You could probably look it up as to what percent of the days, since I was born, they've gone down, and maybe it'd be 30% or something like that. And you can't predict what stocks will do, but in the short run. But you can predict that American business will do well over time. And just take the 20th century. Stocks went from 66, the Dow average, 66 to 11,497, and you were getting 3 times as much in dividends as the whole average was selling for at the start. And you had 2 world wars, and you had a Great Depression, flu epidemics, all kinds of things. American business will do fine over time, and if you own a piece of it, and if you don't beat yourself, the only person that can cause you to get a bad result in stocks is yourself. Yeah, unfortunately, that's the biggest problem, is trying to fight yourself in some of these situations. Yeah. Have you been buying more stocks lately just because prices have come down? Have you upped your percentages and other things just We're because? almost always a buyer of stocks. So we have bought more stocks since the end of the year. But we earned 17 and a fraction billion last year, and we had our float go up 4 billion, which is additional money available. And so we're almost always a buyer of stocks, and we're a more aggressive buyer when they're going down. I mean, I feel much better when they're going down, but it's hard to think of very many months when we haven't been a net buyer of stocks. अब हम बात करेंगे मिस्टर पीटर लिंच की, जो ऑल टाइम इन्वेस्टर लिस्ट में वॉरेन बफेट के बाद नंबर 2 पे आते हैं। A reserve can't do it. So I think that's, but you should study history, and history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means that's a euphemism for losing a lot of money rapidly, but we call it a correction. And so 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet, and they're doing fine, and you're hoping to get to 22 with it,
14 to 22 is terrific. 6 to 22 is exceptional. So you take advantage of these declines. They're going to happen. No one knows when they're going to happen. It would be very, people tell you about it after the fact that they predicted it, but they predicted it 53 times. And अब हम अपने लोकल इन्वेस्टमेंट गुरु मिस्टर विजय केडिया से सुनेंगे, जो कि हमारे इंडियन इन्वेस्टमेंट सर्कल में एक बहुत बड़े जानकार गुरु माने जाते हैं और बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं। ये जो नए इन्वेस्टर जो आए हैं, फर्स्ट टाइमर रहे हैं, इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने लाइफ का पोर्टफोलियो बनाने का। ये तो रोज़ घटता रोज़ बढ़ता, यही मार्केट का ट्रेंड है, तो उसको समझ के चलने का कि हाँ भाई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि गोल्ड का प्राइस रोज घटता और बढ़ता है, लेकिन टाइटन का शोरूम बंद नहीं हुआ ना। दिस ए गुड टाइम इज कमिंग इन दिस मार्केट। इन नेक्स्ट मे बी 3 or 4 months you will really get good opportunity to build up your portfolio first timers in the market. सर 2020 के बाद हमने कोई मेजर फॉल नहीं देखा है। सो इफ़ देयर इज़ अ बिग फॉल टुमारो हाइपोथेटिकली, तो इन्वेस्टर्स को कैसे रेडी रहना चाहिए? नहीं, रेडी तो इसके अंदर में क्या है, ये अगर किसी चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर लेते हो, अपनी लाइफ में ये समझ लेते हो कि ऐसा हो सकता है, तो आपके सारे जो डिसीजंस हैं या जो भी आप फिर जो काम आप करते हो, उस चीज़ को ध्यान में रखकर आप करते हो। तो हर समय यहाँ पर इन्वेस्टर्स को यही ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ, ये 20% गिरा, 20% और गिर जाएगा, तो मैं कितने शेयर्स लूँ, कितने टाइम के लिए लूँ। अभी मार्केट थोड़ी अनिश्चितता की स्थिति के अंदर में है, ये मालूम नहीं हो सकता 2-3 महीना और मार्केट को सुधरने में लग जाए। तो आप ये मत सोचो कि आज मैं लूँगा, जो भी 3 साल में हुआ अगले भी 3 महीने में होगा, ऐसा नहीं होएगा। ऐसा हो सकता है आज आप लो और मार्केट 10% और गिर जाए, हो सकता है आप 1 महीने बाद लो, मार्केट 3 महीना नहीं चले। अब इस चीज़ों को भी आपको झेलना पड़ेगा और उस चीज़ों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। और मैं ऐसा सोचता हूँ मेरे लिए कि ये जो नए इन्वेस्टर जो आए हैं, फर्स्ट टाइमर रहे हैं, इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने लाइफ का पोर्टफोलियो बनाने का। पोर्टफोलियो इन द सेंस शेयर बाज़ार को समझने का। अभी तक इन्होंने समझा था कि शेयर बाज़ार इसी का नाम है कि आज ले लो अगले महीने में प्रॉफिट हो जाएगा। अब उनको थोड़ा रियलिटी चेक की स्थिति आई है। सो नाउ वॉट एवर दे आर गोइंग टू लर्न इन दिस वॉट एवर साइडवेज मार्केट, कंसोलिडेटेड मार्केट और डाउन मार्केट, that will remain as a lesson with them throughout their life. सो अब जैसे हम देख रहे हैं मार्केट्स आर ऑन अ रोलर कोस्टर राइड। कल गिरे थे, आज वापस बढ़ चुके हैं, तो हाउ शुड इन्वेस्टर्स रीड इनटू दिस? नहीं, नथिंग, दैट इज़ द फैशन। स्टॉक मार्केट वर्क्स, ये मार्केट का ये इसका ट्रेंड ही ऐसा है। ये तो रोज़ घटता रोज़ बढ़ता, यही मार्केट का ट्रेंड है, तो उसको समझ के चलने का कि हाँ भाई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि गोल्ड का प्राइस रोज घटता और बढ़ता है, लेकिन टाइटन का शोरूम बंद नहीं हुआ ना। टाइटन को शोरूम तो खुलते ही जाते हैं, कोई भी ज्वेलर को शोरूम बंद नहीं हुए, जबकि रोज़ गोल्ड में गड़बड़ आती है। तो उन्होंने इस तरह से बैलेंस किया अपने पोर्टफोलियो को कि 10-20%, 25% गिर भी गया तो मैं मार्केट छोड़ कर नहीं चला जाऊँगा। आई विल रिमेन इन द मार्केट। सेम पॉलिसी अपने इन्वेस्टमेंट भी आपको लगाना चाहिए। अब हम इन गुरुओं के कथन का निचोड़ निकालेंगे और इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो ये सामने आता है कि शेयर मार्केट में हमेशा हमें नीचे खरीदना है और ऊपर बेचना है। हमेशा हमने गिरावट में खरीदना है और मार्केट जब बढ़े तो बेचना है। जैसे सितंबर महीने में 20 सितंबर के आसपास मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था 26,200 का, अब मार्केट 23,800 पे है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो मार्केट ने हमें दिया है, जिसमें हमें और यूनिट्स खरीदना चाहिए। अब इसी को अगर हम इस शेयर मार्केट को एक बिजली झूले की तरह कंपेयर कर सकते हैं। जब मार्केट ऊपर की तरह जाता है बिजली झूले की तरह, there is a lot of fun, there is a lot of thrill in the market, but जब मार्केट नीचे आता है तो हमें डर लगता है, there is a lot of anxiety in the market। अब गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट करने के 2 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, हमें कम रेट्स में ज्यादा यूनिट्स और ज्यादा शेयर्स मिल जाते हैं क्योंकि उस समय डिस्काउंट चल रहा होता है। और दूसरा फायदा, अगर हमने ऊपर के लेवल में खरीद रखा है तो नीचे के लेवल में अगर हम खरीदेंगे तो हमारे यूनिट्स एवरेज आउट हो जाते हैं, हमारे शेयर्स एवरेज आउट हो जाते हैं। तो ये फायदा है दोस्तों गिरे हुए मार्केट में, सेल लगे हुए मार्केट में खरीदने का। थैंक यू।